پچھلے پیریڈ میں ہم نے دیکھے کہ کس طرح سے غیر مسلم جو حضرات تھے انہوں نے سنت ایک ناتھ مہاراج جو مراٹھی میں سب سے پہلے مراٹھی میں انہوں نے نعت لکھے اور ایک طرح کی بھائی چارگی کا جو محبت کا جو جذبہ ہے وہ انہوں نے اس میں بتانے کی کوشش کی. اور یہ جو لوگ تھے صوفی اور جو سنت لوگ تھے یہ اسی طرح سے نفرت کی بیخ کنی کرنے کے لیے یعنی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے اور یہ لوگ کام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, دھرم ذات پات اور زبان کے امتیاز و تفوق سے ہٹ کر یہ انسان کے فلاح کا رشتہ ہموار کرتے تھے. تو باہمی اب یہاں سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, یہاں تک ہم نے سمجھ چکے تھے, اس کے آگے کا پیراگراف دیکھیں. باہمی رفاقتوں کا یہ سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے. تو یہ جس طرح سے بھائی چارگی والی بات آپ کو مراٹھی ادب میں ملتا ہے, تو یہ آپ کو یہی سلسلہ اردو ادب میں بھی آپ کو مل جائے گا. اردو میں چنانچہ 17ویں صدی کے معروف بزرگ سید امین نے مجذوب السالکین, اس میں الف اور لام ساکین ہے, ٹھیک ہے, تو مجذوب السالکین یہ ان کے نام اس نام کی کتاب میں انہوں نے پیش کیے ہیں. یہ جو بھائی چارگی جو ہے تو آپ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہو. اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں. تو یہ جو آپ لینگویج دیکھ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں, یہ جو لینگویج ہے دکنی زبان کی لینگویج ہے, ٹھیک ہے نا, دکنی زبان. اب یہ دکنی زبان کس کو کہتے کیا کہتے تو انشاءاللہ میں سبق ختم ہونے کے بعد میں آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. میں چاہتا ہوں, انورٹڈ کاماز میں یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ انہی کے جملے ہیں جو ان کی کتاب سے لیے گئے مجذوب السالکین سے. میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں صوفیائے ہر دو قوم کا بیچ دکنی زبان کے, میرے جیو میں آیا کہ مسلمانی ہور ہندوی مذہبی لفظاں جمع کر واسطے صوفیان ہر دو قوم کے ایک رسالہ بنا. انورٹڈ کاماز کلوز. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کچھ آپ کے سمجھ میں آیا ہوا نہیں آیا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں بزرگ سید امین صاحب کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں اس کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ذکر کروں دونوں ہی قوم کے صوفیاء اور سنتوں کے بارے میں, وہ بھی دکنی زبان میں. میرے جیو میں آیا یعنی میرے دل میں آیا کہ مسلمان اور ہندو دونوں ہی مذہب کے جو لفظ ہیں, زبانوں کی جو لفظ ہیں, ٹھیک ہے, الفاظ ہے, ان کو جمع کروں اور ان کو جمع کر کے صوفیوں کے لیے, سنتوں کے لیے, دونوں قوموں کے لیے, خاص طور سے دونوں مذہب کے ماننے والوں کے لیے ایک رسالہ بناؤں ان کے زبان کے تعلق سے, لفظوں کے بارے میں. سید امین نے اس کتاب میں مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے, اور انہوں نے اس کتاب, ان کی جو کتاب ہے مجذوب السالکین, تو سید امین صاحب نے اس کتاب کے اندر انہوں نے مراٹھی محاورے بھی استعمال کیے اور مراٹھی میں کی کہاوتوں کا بھی استعمال کیا. شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگردوں میں شاہ تراب چشتی کا نام بھی لیا جاتا ہے. اب ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد میں ہم شیواجی مہاراج کے دور کے جو سنت اور ان کے بارے میں دیکھیں گے. حضرت سید امین بادشاہ, یہ انٹرنیٹ پر ان کی فوٹو تھی. اب میں دعوے کے ساتھ بھی تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی ہے جنہوں نے مجذوب السالکین لکھی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے انٹرنیٹ پر یہ تصویر ملی ہے ان کی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی فوٹو. اس کے بعد میں آتے ہیں شیواجی مہاراج کے بارے میں. شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت, جب شیواجی مہاراج کا یہاں پر دور تھا, ان کی حکومت تھی, تو ان کے دور میں ایک مشہور سنت تھے جن کا نام تھا رام داس سوامی, اور ان کے ایک شاگرد تھے, ٹھیک ہے.
इनके एक तालिब इल्म थे जिनका नाम था शाह तुराब चिश्ती। शाह तुराब चिश्ती, अब गालिबन मैं परफेक्टली तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इनकी हिस्ट्री को नहीं देखा हूँ, शायद शायद बोल रहा हूँ मैं, परभनी में इनका मज़ार है, इनकी दरगाह है, तो उनका भी नाम शाह तुराब चिश्ती है। तो मैं तो दावे के साथ में नहीं कह सकता। और आप अगर सोच रहे होगे कि भाई ये शाह तुराब चिश्ती लिख रहे हैं अपने नाम के आगे, सिलसिला भी लगा रहे हैं, चिश्तिया सिलसिला, तो चिश्तिया सिलसिला भी लगा रहे हैं, और ये एक गैर मुस्लिम के शागिर्द कैसे हो गए रामदास स्वामी। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आज हम भी जो तालीम हासिल करते हैं तो बड़े बड़े, आप इसके बाद में जो कॉलेजेस में जाएंगे, सीनियर कॉलेजेस में जब जाएंगे आप, ठीक है, तो सीनियर कॉलेजेस में जाने के बाद में क्या होगा कि आप तो वहाँ पर गैर मुस्लिम असातिज़ा पढ़ाएंगे, बीएससी बीए वगैरह में, तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते। और यहाँ ऐसी कोई अगर हस्ती के बारे में अगर ऐसा मामला आ जाए तो हम सोचने में मजबूर हो जाए। तो इल्म से मतलब है, इल्म देने देने वाला कौन है, हम उसको नहीं देखते, ठीक है। तो इसी तरह तालिब इल्म हम भी जब किसी से सीखते हैं तो हम उसका मज़हब वगैरह नहीं देखते, हमको इल्म से उसका मतलब होता है, जो हम सीखना चाह रहे हैं उससे उससे हमको मतलब है, उसके मज़हब से और उसके दीन से मतलब नहीं होता है। ऐसे ही इन लोगों का भी था। तो ये शागिर्द थे रामदास स्वामी के। उन्होंने अपने उस्ताद की मशहूर मराठी किताब, तो शाह तुराब चिश्ती के उस्ताद कौन हुए, रामदास स्वामी। तो इनकी एक किताब थी लिखी हुई जिसका नाम था मनाचे शुलूक। ये मराठी नाम है, उर्दू में लिखा गया है मनाचे शुलूक। इसका अगर उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो दिल दिल की बातें, ठीक है, या दिल की आयतें या दिल की बातें, ठीक है। खैर, मनाचे श्लोक से मुतासिर होकर दखनी जुबान में मन समझावन लिखी। तो वो इससे उनके अपने उस्ताद की उन्होंने ये किताब पढ़े थे मनाचे श्लोक, बहुत मुतासिर हुए और पढ़कर उनको बहुत अच्छा लगा शाह तुराब चिश्ती साहब को। और उन्होंने फिर उस किताब को दखनी ज़ुबान में तर्जुमा किया। इन दोनों किताबों की खूबी यह है कि इनकी बहर एक ही है और बाज़ मज़ामीन में भी यकसानियत पाई जाती है। तो कुछ कुछ ये अशार की तरह, शेर व शायरी की तरह लिखी गई किताब लगती है, और कहीं कहीं कुछ मज़ामीन में एक जैसी बातें भी आपको नज़र आ जाएगी। ये किताबें आदमी की अंदरूनी इस्लाह और समाजी फलाह के लिए लिखी गई थी, और इसका जो मजमून है, इसका मकसद ये है कि इंसान का बातिन सुधारा जाए, ठीक है, यानी अंदर से उसको अच्छा बनाया जाए, नफ़रतें दूर की जाए, ठीक है, और समाजी फलाह के लिए लिखी गई थी, और समाज समाज की तरक्की हो, समाज को एक अच्छा समाज बने, इसके लिए ये किताब लिखी गई थी। इस तरह हिंदू और मुसलमान शोरा की ये सारी कोशिशें उर्दू और मराठी के अदबी रवाबित को मजबूत करने में बड़ी अहमियत की हामी हुई। तो ये उर्दू वालों की भी कोशिश रही, और गैर मुस्लिम हिंदू शोरा और ये सूफ़ी संतों की कोशिशें रहीं कि वो इस तरह से दोनों ज़ुबानों को भी मिलाए और दोनों कौमों को भी एक साथ मिलाने की कोशिश की गई। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मरसिया को वक़ार हासिल है। मरसिया किसे कहते हैं आपको मैंने नहीं बताया शायद, ठीक है। जब उर्दू के अंदर जो मरसिए होते हैं तो मरसिए का मतलब ये है कि जब किसी की मौत हो जाए या किसी शख्स की या किसी भी आदमी की, और उसका जब शायर उसका ज़िक्र हो, उसकी मौत का ज़िक्र वो अपनी शायरी में करे तो उसको मरसिया कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं, एक है होता है शख्सी मरसिया, जो आपने 9th क्लास में, उर्दू की 9th क्लास में हिस्सा नज़म में जो मरसिया पढ़े होंगे तो वो शख्सी मरसिया है। और 10th क्लास में ज़मीन कर्ब वो बला, इस साल आपने जो पढ़े हैं, अभी शायद हमने नहीं पढ़े, हमद और नात ही पढ़े थे हमने, दो चीज़ें, मरसिया नहीं पढ़े शायद। तो वो करबलाई मरसिया है, और उर्दू अदब में करबलाई मरसिया को ज़्यादा अहमियत दी गई है। बहुत सारे शोरा ने करबलाई मरसिया ज़्यादा लिखी, शख्सी मरसिया कम मिलते हैं। शख्सी मरसिया यानी आम आदमी अगर कोई मर जाए उसके बारे में अगर कोई शायर लिख दे तो वो शख्सी मरसिया कहलाएगा। करबलाई मरसिया में इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र होता है खुसूसी तौर पर, ठीक है, करबला की उस जंग का जिक्र होता है, तो उसको करबलाई मरसिया कहा जाता है। तो अरबी और फ़ारसी, और बाद में पहले तो अरबी में मरसी लिखे गए, उसके बाद में फ़ारसी में लिखे गए, बाद में उर्दू आई, उर्दू ज़ुबान,
तो फिर उर्दू में भी मरसिए शोरा ने, शायरों ने मरसिए लिखने की कोशिश की, जिसकी में मशहूर शायर मीर अनीस के बहुत ज़्यादा मरसिए मशहूर है। तो ये एक अदबी शेरी सनफ़ है जिसे मराठी में रिवायती कहा जाने लगा। अब मराठी में भी ये चीज़ गई, मराठी में भी रही, उर्दू से गई मरसिए की, मगर उसमें मराठी में उसको रिवायती कहते हैं, मरसिया नहीं कहते। मरसिया उर्दू में कहेंगे, ठीक है। मरसिए मरसिए के और बहुत सारे जब इंशाल्लाह जब हम मरसिया हिस्सा नज़म में मरसिया पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो उसके जुज़ भी, उसके हिस्से भी बताऊँगा और सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में। फ़र्क इतना था कि रिवायती नोहा और बेन कबील की सनफ़ बनकर मराठी में गाई जाने लगी। नोहा और बेन जो है तो आप मरसिया जो है हमारे कर्बला उसमें जाकर देख सकते हैं। तो नोहा और बेन में ये होता है, बेन में बयान करना होता है, जो मरने वाले के बारे में बयान किया जाता है। नोहा में रोना होता है, पीटना होता है। तो मराठी में ये गाए जाने लगी। इसके बरअक्स, इसके उलट भारोड़ खालिस मराठी सनफ़ रही है। और इसके उलट अगर आप देखेंगे तो मराठी के अंदर भारोड़ भी है, जो मराठी में लिखी जाती थी, और बहुत सारी भारोड़ उर्दू में भी लिखी जाने लगी। ये मराठी से उर्दू में आई। मरसिया मराठी से, सॉरी, मरसिया उर्दू से मराठी में गया, नाम बदल गया और मराठी में जाके उसको रिवायती कहा जाने लगा। भारोड़ मराठी में लिखी जाती थी, वो वहाँ से उर्दू में भी आ गई, मगर इसका नाम नहीं बदला। इसका उर्दू में भी इसको भारोड़ ही कहते हैं। खालिस मराठी सनफ़ है, खालिस यानी कोरी, एकदम प्योर। खालिस कहते हैं प्योर। जैसे कि अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो वो खालिस नहीं रहेगा, प्योर नहीं रहता है। दूध बोलते हैं भाई दूध में पानी मिला है, प्योर दूध होना है। तो प्योर को आप, जो अंग्रेजी का लफ्ज़ है प्योर, इसको आप उर्दू में कहेंगे तो उसको कहेंगे खालिस। आप दुकान वाले को कहिएगा या फिर आप डेयरी वाले को कहिएगा कि हमको खालिस दूध चाहिए, पहले वो आपको गौर से देखेगा। अगर उसको उसका मानी पता होंगे तो फिर वो समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मानी नहीं पता होंगे तो वो आपको बोलेगा भाई दही है मेरे पास में और इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं, खालिस नहीं है मेरे पास में। बहरहाल खालिस यानी प्योर। तो ये मराठी सनफ़ रही है। भारोड़ यानी मराठी में लिखी जाती थी। इसमें रमज़िया हकीकत को आश्कार किया जाता था। उर्दू में ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदरा बहुत बड़े बुजुर्ग है, इनका मज़ार कर्नाटका में, कर्नाटक शायद, हाँ कर्नाटक में। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो रिसाला था इनका शिकारनामा इसी स्लूब में लिखा है। मराठी में एक नाथ की भारोड़ भारोड़ बहुत मशहूर है। एक नाथ की आपने फ़ोटो देख ली पहले। और ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज जो है तो इनकी ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और इनका मज़ार भी है। तो ये देखिए आप, उनके दरगाह का ये गेट है, बहुत सारे लोग जाते भी हैं वहाँ पर। शायद ये हुगली में नहीं, गुलबर्गा में, शायद गुलबर्गा। तो आप ये उनकी एक मस्जिद और वहाँ के उनके आस्थाने का फ़ोटो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, गुलबर्गा, कर्नाटका। और इनके बारे में अगर आप और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर भी आप सर्च कर दीजिएगा ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, तो आपको पता चल जाएगा। अभी महाराष्ट्र के इलाकों में ये इन्होंने भी रहे, फिर बाद में इनको शायद ये उधर के इलाके में चले गए। और ये भी सूफी बुजुर्ग हैं, ठीक है। आइए थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। चिश्ती चिश्ती क्या है और ये क्या है, सिलसिलों के बारे में बता दूँ।